Greeting, I'm fine, sir. thank you, sister. Greetings, everybody. I am Syed Musab Rahim Hashmi, advocate. Presently with Syed Etemaduddin, one of my ustad or guru or teachers in the field of advocacy. It was a lucky day for me today because while going from the High Court of Telangana to his place of regular practice, on the way my home was there. So he gave us few minutes and discussed on various topics. And this is the topic for this video. Uh, could you please, sir, give your introduction until then? Yes, my name is Saeed Etemaduddin. I started my practice in 2006, and since then I am practicing. I started practicing High Court, then subsequently also appeared in district courts, like in criminal courts and civil courts. So, in a nutshell, uh, people say that jack of all, perfect in none, but the profession of advocacy is that we should be jack of all. An advocate is a person who should know something about everything and everything about something. It is a code. Okay. So personally, what I think that earlier it was the practice that some advocates used to practice in a particular field, like in civil side and criminal side, and High Court or Supreme Court or tribunals. Nowadays, there are many cases and uh, many courts are established, and therefore, it's my personal thought that if a person becomes an advocate, he should have knowledge of all these courts because you don't know what type of case you are going to get. So, in that sense, I'm speaking on this topic. That yes, it is compulsory. When you start your practice, you should decide which practice you want: litigation practice or criminal practice, high court practice or civil court. So just start by entering into one of the court. It will be either civil side or criminal side. But one important thing is that these civil courts and criminal courts and high courts, Supreme Court, all these except our Supreme Court, different courts are available in major cities. Okay, while in the district level, you are having the courts in only one premises. Okay, so there you have to practice both in civil and criminal. If you take the example of our Hyderabad, Deccan, so here we are having civil court separate and criminal court separate. High court is separate. So some people go to civil court for practice, some people go for criminal court for practice, and some join high court. But in district areas, it is not like that. In a one court premises, you are having means a judge also see the civil matters also and criminal matters also. So in district level, you cannot choose a particular field, while in major cities or big cities, metropolitan cities, it is avoided. Sri, how are you, sister, today? Okay, her mic is not working. I hope. I'm doing good, sir. I'm doing good. So if I am your guru in the field of advocacy and he is my guru, so he is your grand guru. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. तो सर आज का हमारा सवाल आपसे ये है कि आजकल एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि एक जज साहब हैं ऑनरेबल शेखर कुमार यादव साहब जस्टिस ऑफ ही इज द सिटिंग जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और उन पे एक एलिगेशन लगा है कि वो डेरोगेटरी कमेंट्स किए थे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में जैसा कि वो लफ्ज कठमुल्ला यूज किए थे ये एलिगेशन है और ये एलिगेशन है कि मेजॉरिटी लोगों के हिसाब से देश चलाया जाएगा तो इसके बारे में आप कुछ अगर इंट्रोडक्शन दें तो उस ताल्लुक से फिर मैं आपसे दो सवाल करना चाहूँगा जैसा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस है
देखिए ये भी क्लियर कर दूंगा जो न्यू बच्चे हमारे लॉ कोर्स में आते हैं। देर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स वी यूज फॉर जजेस, वन इज जज एंड मैजिस्ट्रेट एंड जस्टिस। तो it is not mentioned anywhere in our law books, but in practice we use these words. For example, we use magistrate who deals with the criminal cases, and we use the word judge who see the civil cases. And for justice, generally they are available in High Court and Supreme Court. तो ये एक प्रैक्टिकल इसको यूज किया जाता है, तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसके ऊपर। तो जस्टिस साहब जो, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं जस्टिस साहब हैं, और आपने वीएचपी के एक प्रोग्राम में जो सोशल गैदरिंग थी, तो वहां पर इस किस्म के उन्होंने कटमुल्ला और देश जो चलेगा वो मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा, इस किस्म के उन्होंने बयान दिए, इस किस्म के एलिगेशन हम सुनते आ रहे हैं। जस्टिस होते हुए या जज होते हुए या मजिस्ट्रेट होते हुए, हम बीइंग एन एडवोकेट आल्सो हम कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा सेक्युलर है, तो इसमें किसी मजहब को प्रेफरेंस नहीं दिया जाए, सभी मज़ाहिब को एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर एक मजहब को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। साहब शू के नाम से मालूम होता है कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने जो है इस किस्म के बात किए हैं जो कि एलिगेशन है। अब इस पे हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलते, सुप्रीम कोर्ट इस पे नोटिस भी लिया है और उनको पूछा भी है कि आपके इस बयान पे आपको क्या कहना है। तो एक जज होते हुए आप सोशली इस किस्म के अगर आप रिमार्क्स पास करेंगे, तो आपके मुमकिन है आपके पास कोई मुस्लिम साहब या सिख या ईसाई का केस आ जाए, तो फिर वो जो लिटिगेंट होगा वो तो आपके ऊपर शक करेगा, कोई भी जज हो अगर इस किस्म से बात करेंगे। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जज साहब को जो उनका पोर्टफोलियो था उससे हटाकर उनको जो है, तो 2010 के पहले के जो केसेस थे सिविल नेचर के, उस पर उनको रख दिया। क्योंकि और एक भी रिमार्क उन्होंने किया था कि एक किस्म की कम्युनिटी के बच्चे पैदा होते हुए बकरे हलाल होते हुए देख रहे हैं या दूसरे जानवर हलाल होते हुए देख रहे हैं, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वो उसी से उनको नहीं देखते। तो अब इनकी एक जो है उस तरीके से सोच मालूम होती है कि आप पता नहीं किस अंदाज से कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक जज क्या, किसी भी एक वकील हो, कोई एक ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी हो, इसको एक पर्टिकुलर मजहब को टारगेट करना या पर्टिकुलर मजहब से नफरत करना, ये इसको ना दस्तूर हमारा इजाजत देता, ना हमारे मजाहिब इसकी इजाजत देते। तो मेरा जो पर्सनली जो है कि साहब जो किए हैं इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए था, बेहतर वो जवाब देंगे एक्सप्लेनेशन में अपना। तो ये जो है बाज टाइम पे डाउट आता, सवाल आता लोगों के कि जैसा अलग अलग इंसान है, अगर उनसे कुछ भूल चूक हो जाए तो उनको सजा देने के लिए, उनको रेक्टिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स है। आम आदमी के लिए है, कोई डॉक्टर करता है तो उनके लिए मेडिकल काउंसिल है, जी इंजीनियर्स का क्वालिटी कंट्रोल है। तो उस तरीके से जज भी एक इंसानों में से ही पाया जाता है, जी वो कोई आसमानों से उतरा हुआ शख्स नहीं होता है। तो जज से अगर कुछ भूल चूक हो जाए, अगर कभी जज से कुछ गलती हो जाए, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और कौन सा अथॉरिटी रहेगा जो उनको सजा दे अगर जी प्रूफ हो जाए कि वो गलत बहुत किए हैं। बेहतर आपका सवाल है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये जज साहब को जेल भेज दिया जाएगा या इनको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो जनरली देखिए जजेस जो है, हाँ अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं बाहर अदालत के बाहर, तो मर्डर करते हैं, कोई रेप करते हैं या किसी और किस्म का संगीन जुर्म करते हैं, तो उनके ऊपर तो एफआईआर बुक होगी, वो फिर क्रिमिनल केस के हिसाब से चलेगा। लेकिन आपके जस्टिस जनरली जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, इनको कोई ऐसा कोई मुकदमा जो है अदालतों में नहीं चलता। इनके लिए एक स्पेशल कार्रवाई होती है जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है जो लोकसभा और राज्यसभा में इनको इनके ऊपर कार्रवाई चलाई जाती है। अदालत में इनको खड़ा नहीं किया जाता कि किसी अदालत के खटगरे में उनको लाकर खड़ा कर दिया गया, या इनके इस रिमार्क पर एफआईआर बुक होने के बाद इनको कोई जेल भेज दिया गया। इस तरीके के इनके ऊपर इकदाम नहीं उठाए जाते। लोकसभा के मेंबर अगर नोटिस लेते हुए इन पर एक्शन लेना चाहते हैं और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम 100 एमपीज होने चाहिए
जो इसको पास करे, इस नोटिस को ले। और अगर राज्यसभा से इसको इनिशिएट करना चाहते हैं इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग, तो 50 मेंबर्स कम से कम जो है एमपीज होने चाहिए जो इस किस्म का इकदाम उठा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर लोकसभा और राज्यसभा में ये महसूस हो कि वाकई में इन पे कोई एक्शन लेना है या इनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, तो पहले कमेटी बनाई जाती है। फिर उस कमेटी में मेंबर्स होते हैं, जस्टिसेस होते हैं सिटिंग, और अदर जजेस वगैरह को अपॉइंट किया जाता है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन के वैसा करते हैं कि भाई वाकई में ये हरकत इनसे हुई है या नहीं हुई है। फिर मेजॉरिटी जो लोकसभा है और राज्यसभा के एमपीज हैं, अगर इनके खिलाफ कोई ऑर्डर रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो फिर जब जाकर इनको हटाया जा सकता है। ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि इनको पकड़ के हवालात में डाल दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ऐसा नहीं। स्पेशल इन लोगों को प्रोटेक्शन है। ये स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें ना हो। तो फिर कोई भी मुमकिन है कि कोई ऐसे लोग जो है जजेस पे इन्फ्लुएंस पैदा कर दे कि आपको हम जेल भेज दें या फिर और कोई कार्रवाई कर दें। तो इस वजह से जजेस, खासकर जस्टिस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी जो ऊपर कार्रवाई होगी वो लोकसभा और राज्यसभा में होगी, अदालतों में नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने आपके हाई कोर्ट से आपके प्लेस ऑफ प्रैक्टिस जाते हुए हमारे लिए वक्त निकाला। आपका फोन नंबर अगर हो तो एक बार सुना दें अपने ऑडियंस को, जी, नोट डाउन करें। 9849633393। थैंक यू।